Brothers, namaskar आप सबको. So, I am in your school today, and the name of your school is Anand Samriddhi Vidyapith. What is Samriddhi and what is Ananda? Ananda. Actually, Ananda cannot be attained or cannot be achieved by any material thing. आनंद जो शब्द है, आनंद की प्राप्ति कोई भी भौतिक वस्तुओं से संभव नहीं है. क्या होता है? हम कुछ पाना चाहते हैं. क्या पाना चाहते हैं? हम जो कुछ भी करते हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इस दुनिया में इंसान कर्म करते हैं, हर प्रकार के कर्म करते हैं, अच्छा बुरा सब काम करते हैं. इस कर्म के पीछे क्या उद्देश्य है? क्यों कर्म करता है? क्योंकि वो हर कर्म के पीछे सुख पाने की इच्छा है. क्या है? सुख पाना चाहता है. क्या कोई दुख पाना चाहता है? क्या नहीं पाना चाहता है. वो चाहता है कि हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आए. लेकिन जब सुख मिलता है और बहुत ज्यादा सुख हो जाता है, फिर वो सुख खो ना जाए, उसका भी डर रहता है ना. बहुत आनंद आता है, बहुत सुख आता है, किंतु वो सुख खो ना जाए, खत्म ना हो जाए, उसका भी इसका मन में एक दुख है कि अगर खो जाएगा, ये ऐसा नहीं रहेगा तो क्या होगा. अर्थात दुख. तो इंसान चाहता तो सुख है, लेकिन उसको खोने का उसको डर रहता है, क्योंकि वो क्षणिक है, वो टेम्पररी है. ठीक है? तो क्यों लगता है भाई टेम्पररी सुख से? दुख तो पाना नहीं चाहता है, सुख पाना चाहता है. तो कितना सुख पाना चाहता है? तो बहुत सुख चाहता है, अनंत सुख चाहता है, सीमाहीन सुख चाहता है. ऐसा चाहता है कि कभी वो सुख उसका खत्म ना हो. यही ना, यही इच्छा है. तो वो जो खत्म ना होने वाला जो सुख है, उसी को बोलते हैं आनंद. समझे? तो इस दुनिया में कोई भी चीज आनंद नहीं दे सकता है आपको. थोड़ा सुख दे सकता है, आनंद कहीं और है, ऊपर की चीज है. और समृद्धि का मतलब क्या होता है? 3 शब्द है: रिद्धि, समृद्धि एंड सिद्धि. रिद्धि होता है भौतिक जगत में, इस जगत में, और रिद्धि होता है बौद्धिक जगत में. अर्थात जहां पर तुम्हारा बौद्धिक विकास हो, मन का विकास हो, वही है आनंद समृद्धि. समझे? जहां पर मेंटल डेवलपमेंट हो, मन की विकास हो, डेवलपमेंट ऑफ योर माइंड, or you can say the expansion of mind, is called ananda samriddhi. So as I have been talking to you, and you have also given me feedback that education is to acquire the knowledge. Acquire the knowledge. And what is the knowledge? You all have told the knowledge is to acquire information. Information about different entity, different objects, like the earth, planets, comets, meteors, water, air, fire. We want to get information, detailed information, or even deep information about the earth. So whatever information we get, that very information
information, we may call it knowledge. We may call it knowledge. But whatever we are visualizing, we are seeing, we are experiencing by our sensory organs, everything has got its limitation. Whatever we see, everything is changeable. Today you are 15 years. After 10 years, you will no more remain as 15 years boy. You will become 25 years young and a strong boy. Isn't it? You will be a man. Now you are not a man, you are a boy. And after 10 years, you will become a man. Isn't it? So, everything is changing. So, most, you can say, the matter of laughing is that we want to know, we want to acquire the properties which is ever changing. हम ऐसा चीज को पाना चाहते हैं जो हमेशा परिवर्तनशील होता है, जो हमारे हाथ में रह ही नहीं सकता है। जिस ज्ञान को हम ज्ञान बोलते हैं वो परिवर्तनशील होता है नहीं, ठीक है? तो मैंने ये कहा आप लोगों को, but I told you, okay, it is good to know the world. We are in this world. It is good to know about the world. But what we know about ourselves, is it not our duty to know ourselves? We may know about the world, but to know thyself, unless until you know yourself, I know myself, unless until I realize myself, how can we call ourselves an educated man? Because whatever we came to know, it is changeable. And what is our permanent that we don't want to know or have never tried to know? So the most important thing is to know oneself. So knowledge is divided into two parts. One is temporal knowledge, one is permanent knowledge. So both are combinedly known as knowledge. So only bookish knowledge cannot be accepted as the permanent knowledge. At the same time, this self-realization, that is the permanent knowledge. But we have our body, we have our mind, we have our soul. So we should have maintain a balance between your body, mind and your soul. Your body, mind and soul. Sit straight, don't sit like this. So what I say, that we should have balance between our internal world and external. Internal and external. So you see, we have two worlds. One part is internal, okay? It is internal world, and one is external world. External world. So what is our duty? Our duty to make a balance between these two worlds, external and internal. So external knowledge we have, but we are lacking this internal knowledge. And this internal knowledge is called subjective knowledge. What is that? Subjective knowledge. Subjective, okay? And this is called objective knowledge. What is this? Objective knowledge. So, without knowing this subject, we have
to know object only. So this is called incomplete knowledge. Bookish knowledge is incomplete knowledge. And complete knowledge is subjective realization to know yourself. Understand? So that is why the real meaning of education here is called education. Education means to explore, to manifest, to express the internal divinity within you. That's called true education. Understand now? So, bookish knowledge is not the final goal. Bookish knowledge can give you some kind of information to know the world and to adjust with the world. But the self-realization is the true knowledge which will help you to establish in supreme mood, to become perfect, to establish in perfection. That is called education. So the goal of education is to acquire knowledge, and acquire knowledge is to know thyself. तो क्या हुआ? एजुकेशन हुआ, नॉलेज हुआ, ओके, हैं? नॉलेज हुआ, उसके बाद क्या हुआ? एजुकेशन, नॉलेज, उसके बाद knowledge about known and unknown, known and unknown, knowledge about known and ज्ञात और अज्ञात, जो जाना और जो नहीं जाना, okay, and the termination, where does this knowledge terminates? ये knowledge का पराकाष्ठा क्या है, गोल क्या है, कहाँ पहुंचना है नॉलेज के द्वारा? तो परफेक्शन. क्या है? परफेक्शन में जाना है. ठीक है, हमें परफेक्ट होना है, हमें कंप्लीट होना है, हमें इनकम्प्लीट नहीं होना है. तो ये कंप्लीट होने के लिए जो जो चीज चाहिए, सबसे बड़ा चीज क्या है कि हम अपने शरीर को ठीक रखें. We should keep our body healthy. At the same time, we should have a developed mind. We should have a strong body. At the same time, we should have a strong mind too. So we have our strong body, we have our strong mind. Then we should have our spiritual elevation. शरीर के साथ साथ हमारा मन का विकास जरूरी है. मन के विकास के साथ साथ हमारा आत्मा का भी विकास जरूरी है. सीधा बैठो, नींद आ रही है तो सीधा. जब हम तीनों में जब संतुलन स्थापित करते हैं, तीनों में शरीर भी ठीक है, मन भी विकसित है और आप भी, तो एक पूर्णता प्राप्त है. क्या आता है? परफेक्शन आता है. और एजुकेशन का मतलब ही होता है एक पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण, एक कंप्लीट पर्सनालिटी. क्या है? कंप्लीट पर्सनालिटी की जरूरत है. तो सही जो ट्रू एजुकेशन होता है कंप्लीट बनाता है. उसमें देखो सब चीज को तो हम डिस्कशन नहीं कर पाएंगे. जानते हो एजुकेशन का सबसे जो पहला लेटर होता है ई. ई का मतलब होता है एक्सपांशन ऑफ माइंड. क्या है? एक्सपांशन ऑफ माइंड. एक्सपांशन, मन को विकसित करना, मन के जो एरिया है उसको बढ़ाना. The circumference of mind should be expanded. Expansion, go on expanding yourself. But where is the termination of this expansion? मतलब ये एक्सपांशन कहाँ तक होगा? कितना हो सकता है? कोई मैक्सिमाइटिस कितना है एक्सपांशन का? एक है मिनिमाइटिस, एक है मैक्सिमाइटिस.
तो मैक्सिमाइजेस क्या है? मैक्सिमाइजेस 360 डिग्री। इसका मतलब तुम अपने माइंड को अगर एक्सपांड करोगे तो कितना तक कर सकते हो? 360 डिग्री तक। अब जब 360 डिग्री में तुम्हारा माइंड एकदम एक्सपांड कर गया तो क्या होगा? जो तुम्हारा माइंड का एक एक जो सेल है, एक माइंड से एक दुनिया के कण कण में प्रवेश कर जाएगा। ये जो इंटायर जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स के कण कण में, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स में तुम्हारा माइंड पहुंचेगा। माइंड जितना एक्सपांड करेगा क्या होगा? माइंड सटल होगा, सूक्ष्म होगा, और कहा पूरी दुनिया के कण कण को समझाना होगा। एक्सपांशन होना का मतलब जो है कंप्लीट हो गया। 360 के बाद तो कुछ नहीं रहता है, कंप्लीट हो गया। टोटल जो यूनिवर्स, होल यूनिवर्स तुम्हारे अंदर में आ गया। जब तुम्हारे अंदर में सारा चीज आ गया तो यहाँ पर जो कुछ है तुम सब कुछ जान जाओगे। इसका अतीत क्या है, पास्ट क्या है, इसका प्रेजेंट क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। अर्थात माइंड का जब एक्सपांशन हो जाता है तो आदमी क्या बन जाता है? ओमनीसाइंट बन जाता है। क्या बन जाता है? ओमनीसाइंट का मतलब त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान सब चीज हो जाता है। तो मैंने क्या कहा था? एजुकेशन का मतलब है जानना। तो जानना क्या? जानना दुनिया को भी जानना और खुद को जानना। और खुद को जानना का मतलब 360 डिग्री एक्सपेंशन। और जब खुद जाने जाएंगे तो ओमनीसाइंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ओमनीसाइंट का मतलब त्रिकालदर्शी, सर्वज्ञता। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है एक्सपेंशन ऑफ माइंड। अब एक्सपेंशन ऑफ माइंड, आपका माइंड कहां तक एक्सपांड है भाई? आप तो अपने बारे में सोचते हो, अपने मम्मी पापा के बारे में सोचते हो, अपने भाई बहन के बारे में सोचते हो, ज्यादा से ज्यादा अपने गांव के बारे में सोचते हो, देश के बारे में कब सोचते हो, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में कब सोचते हो? बहुत कम, है ना? तो देखो, जब तुम्हारा माइंड एक्सपांड करेगा, just in accordance with the change of your mind or evolution of mind or expansion of mind, what will happen? You will start to know and you will have a feeling and love for everyone, not only for your family, not only for you, not only for your village, not only for your district or state or your nation. You will have love for the entire universe. पूरे दुनिया के प्रति आपका मन विशिष्ट, सबको प्रति प्रेम, सबको प्रति सहारा, सबको सम्मान, ये फीलिंग जब, इसलिए ना कहा जाता है विद्या ददाति विनयम। विद्या जब तब लोगों में विनय भाव जागृत होता है, अहंकार। जिस व्यक्ति में ज्ञान का अहंकार होता है तो विद्वान नहीं होता है, वो अहंकारी है। और सही जो एजुकेशन जिसको मिलेगा वो कभी घमंड नहीं करेगा कि वो जानता है किस चीज का घमंड है। ये जो नॉलेज है मेरा थोड़े ही है, ये तो मुझे कहीं और से मिला है। किसने दिया है? द सुप्रीम रूट से। ठीक है, इसलिए वो अहंकार इंसान को नहीं होता है। तो मेरा कहना था कि तुम्हारे अंदर अगर संकीर्णता रह जाती है, तुम्हारे अंदर अगर कास्ट का फीलिंग हो, तुम्हारे अंदर अगर जाति का फीलिंग हो, तुम्हारे अंदर राष्ट्रीयता का फीलिंग हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारे राज्य का फीलिंग हो, तुम्हारे अंदर सिर्फ मानव जाति के लिए प्रेम हो, तुम्हारे अंदर सिर्फ तुम्हारे इस धरती के लिए प्रेम हो, तो भी संकीर्णता है। तुम्हें पूरे विश्व के लिए प्रेम जगाना होगा। विश्व के हर व्यक्ति, हर इंसान, हर जीव के लिए तुम्हें प्रेम जगाना होगा। ये जब जगेगा तभी होगा सही एजुकेशन। इसीलिए कहा जाता है जो एक सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्तित्व होता है, सेल्फ रियलाइज्ड आत्म अनुभव प्राप्त व्यक्ति, वो किसी एक के लिए नहीं हो सकता। महात्मा बुद्ध जब आपने हमें मिला है, ये संपूर्ण
कल्याण के लिए इस बोधि का प्रयोग होगा। अर्थात मैंपन, मेरा अस्तित्व पूरे दुनिया के लिए, सबके अच्छाई के लिए, सबके भलाई के लिए। तो ये एक सही एजुकेटेड व्यक्ति, एक ट्रू एजुकेटेड पर्सन will have love for all, irrespective caste, color and creed। एक सही जो उन्नत व्यक्ति होगा, उनको किसी तरह की संकीर्णताएं, किसी तरह का नैरो सेंटिमेंट उस आदमी को बांध के नहीं रख सकता है। किस तरह से? तो एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? एक्सपेंशन होगा। अब ये जो सेल्फ रियलाइजेशन, बुकिश नॉलेज की किताब पढ़ोगे और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए क्या करोगे? साधना। ये जो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? साधना करना होगा। आपको याद है जो बहुत बड़े योगी, सबसे कम उम्र के योगी कौन? जागृत हो गया, अर्थात एकदम 5 साल के उम्र में ही वो साधना करना शुरू कर दिया। ध्रुव भी 5 साल की उम्र में साधना करता, वो जान गया था कि ये जो दुनिया है ये क्षणिक है, टेम्पररी है। लोग झूठ के इसके पीछे दौड़ रहा है, लेकिन वास्तविक ज्ञान है आत्मानुभूति। अर्थात इसके बाद हमको जहां जाना है, वो जो परमानेंट जो आश्रय है ज्ञान का, आनंद का जो स्वरूप है, वहां पर हमें पहुंचना पड़ेगा। इसीलिए बच्चों, आज हम अभी शॉर्ट नहीं करना चाहते हैं कि इतना तो समझ गए हो कि एजुकेशन का एक्सपेंशन ऑफ माइंड है। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें नियमित साधना करना होगा। रेगुलर साधना में, और कोई कहिया न करे, तुम अपना साधना जरूर करोगे। अपने बेड पे बैठ के साधना करोगे, और कहीं नहीं मिलते, एकांत में जाकर तुम साधना अपना करोगे। जिस तरह से पढ़ाई अकेले में करते हो, पढ़ाई भी करो और साधना भी करो। ये दोनों का जब सम्मिलित मिश्रण होगा तो देखोगे कुछ दिनों के बाद तुम पूर्ण व्यक्तित्व बन जाओगे, एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन जाओगे। देखो, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये क्यों बनता है? पैसा कमाने के लिए बनता है। लेकिन जीवन का लक्ष्य सिर्फ पैसा तो नहीं है। ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, उस क्षेत्र में अपने आप को बढ़ा दो, प्रेम में बढ़ा दो, अपना इतना बढ़त बना दो कि सारा। आज देखो, बहुत ऑफिसर्स है, बहुत लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन कोई एक दूसरे पर विश्वास करता है? तो क्या है, तुम कितना पढ़ा लिखा, इससे क्या मतलब हो गया जब तुम पर लोग विश्वास ही नहीं करता, तुम पर लोगों का भरोसा ही नहीं है, तो क्या फायदा हुआ कुछ फायदा? इसलिए ऐसा कुछ बनो, इस तरह का कुछ बन के दिखाओ जिससे कि लोग तुम लोगों पर विश्वास करें। ठीक है? और वही जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि होगा, वही सबसे बड़ा ज्ञान होगा, और दूसरा कुछ नहीं। ठीक है? आज यही तरह करते हैं, कल मिलेगा तो फिर कल। ओके, ठीक, नमस्कार।